Very good afternoon, everyone. The topics that we'll be discussing today include group discussions, micro presentations, and personal interviews. तो आफ्टर क्लास 12 जब आप लोग कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस में जाते हो, दीज आर द थ्री थिंग्स जो आपको सबसे कॉमनली देखने मिलेगा अपार्ट फ्रॉम योर एंट्रेंस टेस्ट. See, the reason why I have not included entrance test as a separate topic in today's discussion is that उसका preparation is purely academic. ठीक है, तो वो कुछ ऐसा चीज है जो आपको ऑनलाइन बहुत इजीली मिल जाएगा, बट ये जो चीजें हैं ये आपको ऑनलाइन अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बताएंगे एंड विच वन विल वर्क यू डोंट नो. ठीक है, so I'll give you a little backdrop about myself regards to these three things that we're about to discuss right now. Group discussions, I haven't had a lot of group discussions that I have done about 7 or 8 group discussions, and that too during my only my interview process. Usse pehle I have not indulged in a lot of group discussions. Presentations, micro presentations, I have done quite a few, and fortunately I did not have to go through the micro presentation process during my interview. Okay? And personal interviews also, I have gone through quite a few of them, not just for the admission process, but also for the jobs that I'm applying currently, and for all different various other things. Like I used to do a lot of MUNs. तो वहां पे भी to get approved, like as a chair or as a chairperson, as the executive board member, you have to give your interview. So you get approved for that. Only after that you can get that position. So I have done quite a few of them, and I've even conducted a few of personal interviews. So I know what are the things that interviewers look for, and what are the things that you as a person who is getting interviewed should keep an open mind for. So keeping all that in mind, first of all, we'll be starting with group discussions. Okay, so basic hota kya group discussion. For those who do not know, excuse me, it's basically 5 to 10 people, and it might be a little more than that also. They all sit around in a circle in one group. Okay, when we are talking in the offline scenario, and a common topic, a topic which is like very vague, very general, ठीक है, और something which होना चाहिए, सबके पास उस चीज का नॉलेज होना चाहिए, उस टाइप का टॉपिक आप लोग को दिया जाएगा. After you get that topic, you will be given let's say a minute or so to prepare. ठीक है, that's just it, उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलता है. तो you get about a minute or so to prepare. After that, you have to start speaking. Now the question arises, पहले कौन बोलेगा? ठीक है, एंड हाउ डू वी स्टार्ट स्पीकिंग, व्हाट डू वी स्पीक, ये सब का कोई आइडिया नहीं होता है. ठीक है, तो माय फर्स्ट टिप बिफोर आई मूव इनटू द सीरीज ऑफ टिप्स दैट आई प्रिपेयर्ड, माय फर्स्ट टिप वुड बी, आप लोग एक काम करो, पहले YouTube पे जाके लुक एट हाउ ग्रुप डिस्कशंस गो. ठीक है, ऐसे बहुत सारे शोज भी है जहां पे ग्रुप डिस्कशंस आर फन थिंग टू वॉच. ठीक है, तो सम ऑफ देम आर कॉमेडिक इन नेचर, सम ऑफ देम आर वेरी इंफॉर्मेटिव इन नेचर. तो वो सब YouTube पे भर भर के पड़े हैं. Go out there and watch a few of those. It's very interesting, I'm telling you guys. ठीक है, तो it would be very good for you guys to go and watch those. Number 1. Number 2 is group discussions में ना, you might think that it is not just about you. ठीक है, because there are so many people out there. Why would someone be looking just at you? तो ग्रुप डिस्कशंस आर यूजुअली नॉट द फर्स्ट स्टेज एट ऑल. ठीक है, उससे पहले वो हो चुका होता है, एंट्रेंस टेस्ट एंड ऑल हो चुके होते हैं, तो ओनली द गुड वंस दैट आर सिलेक्टेड वो लोग आते हैं ग्रुप डिस्कशन करने. ठीक है, आउट ऑफ विच ना दिस इज योर चांस टू मेक योर फर्स्ट इंप्रेशन. ठीक है, बिकॉज एंट्रेंस टेस्ट तो सबने क्लियर कर लिया ना, मतलब जो क्लियर कर रहा है वही अब आपके सामने बैठे हुए हैं. तो हाउ इज इट दैट यू मेक योरसेल्फ स्टैंड आउट फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रोसेस? तो this part, this is the first part of the funnel, जहां पे आप लोग फिल्टर हो रहे हो, जहां पे आप अपने आप को स्टैंड आउट करा सकते हो. एंड देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट इफ यू कीप इन माइंड, उस तरीके से आप स्टैंड आउट कर सकते हो. एंड अब हम लोग वो सब देखने वाले कि वो क्या क्या चीजें होती हैं. ठीक है, स्क्रीन पूरी तरह विजिबल है ना आप लोगों को गाइज? ओके, तो देखो, सबसे पहला ग्रुप डिस्कशन में ना, अच्छा, जो लोग यहाँ पे अभी है, आईसी नंबर बहुत ऊपर चढ़ गया अचानक से, तो देखो मेरे प्रेजेंटेशन का स्क्रीनशॉट्स लेके कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ समझ नहीं आएगा. ठीक है, तो आई मेक प्रेजेंटेशंस लाइक दैट ओनली. यू विल हैव टू लिसन वेरी केयरफुली, एंड इफ यू वांट यू कैन टेक डाउन व्हाटएवर आई एम सेइंग. ठीक है, तो दैट वे इट विल हेल्प यू गाइस. ठीक है, तो सबसे पहला काम ग्रुप डिस्कशन में ये होता है, यू कैन नॉट गो इन अनप्रिपेयर्ड.
नाउ यू माइट से यार टॉपिक तो है ही नहीं, क्या प्रिपरेशन करके जा सकते हैं? तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द टॉपिक, ठीक है? ग्रुप डिस्कशंस में या द टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट श्योर, बट मोर देन द टॉपिक ना, यू गाइस हैव टू फोकस ऑन द वे यू स्पीक, ठीक है? आपका कॉन्फिडेंस जो निकल के आता है उस समय में, ठीक है, आप किस तरह से अपने वर्ड्स को पुट अक्रॉस करते हो, नॉट जस्ट टू द पैनल, बिकॉज ग्रुप डिस्कशंस में ना दे विल बी अ पर्सन मॉडरेटिंग द डिस्कशन, लेकिन वो ज्यादा कुछ करता नहीं है, वो टॉपिक देता है एंड ही विल टेल यू गाइस टू स्टार्ट एंड ही विल टेल यू गाइस टू स्टॉप, उससे ज्यादा वो ज्यादातर मॉडरेटर्स वाले लोग काम नहीं करते हैं, ठीक है? तो आप जब बात कर रहे हो ना, यू आर नॉट टॉकिंग टू द मॉडरेटर, यू आर टॉकिंग टू द एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. This is in the offline mode. When I talk about the online mode, make sure you're looking at the camera while you're talking, or you're looking at the screen while you're talking, ठीक है? Because if I if the moderator or if the other people also, like other आपके जो members है, वो लोग आपको देख रहे हैं कि आप कहीं और बार बार देख रहे हो, बात करते समय इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, ठीक है, आप कहीं स्क्रीन के नीचे कहीं पे देख रहे हो, they'll understand कि आपने ऑन स्पॉट कुछ गूगल कर लिया है, वहां से आप स्टैट्स एंड फिगर्स लेके आ रहे हो, या फिर कुछ बड़ा बड़ा इंफॉर्मेशन के चंक्स लेके आ रहे हो. नो वन विल वांट टू लिसन टू यू. बट इफ यू लुकिंग एट द स्क्रीन एंड टॉकिंग ना, यू कैन कीप देम हुक्ड टू व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है? तो प्रिपरेशन वैसे करना है कि यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू नो, लाइक अपने आप में कन्विक्शन रखना है कि जो बोल रहा हूं मैं, आई विल टॉक वेरी कॉन्फिडेंटली, ठीक है? It has been seen that if you are confident ना, even if you say a few things which might be wrong, ठीक है, आपको भी नहीं पता आपने गलत बोला है, लेकिन हो सकता है मतलब आपने इस तरीके से पुट अक्रॉस किया होगा कि जो 8-10 और लोग हैं ना, वो लोग डाउट में आ जाएंगे. इवन इफ दे न्यू द राइट आंसर, दे विल बी इन डाउट कि आपने सही बोला कि गलत बोला, एंड दे विल बी वेरी स्केयर्ड टू अपोज यू, बिकॉज यहाँ पे 1-to-1 डिस्कशन नहीं है, 8-9 लोग और है. तो बाई चांस अगर वो बंदा सोचता है कि हाँ यार इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है, शायद मेरे दिमाग में कुछ गलत आ रहा होगा, ठीक है, तो वो बोलने से डरेगा, वापस आपको अपोज करने से डरेगा वो, एंड दैट वे योर पॉइंट ऑफ सुपीरियोरिटी गेट्स अक्रॉस. नाउ यू माइट थिंक मॉडरेटर को तो पता होगा ना सच बात क्या है, तो अगर मैं ऐसे कुछ फेंकने की कोशिश भी करूं, मॉडरेटर तो पकड़ लेगा. मॉडरेटर का काम है डिस्कशन को मॉडरेट करना, वो आपके फैक्ट्स करेक्ट नहीं करेगा कभी भी. दैट इज व्हाट ही इज लुकिंग फॉर, कि आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ, कितने कन्विक्शन के साथ अपने पॉइंट्स को पुट अक्रॉस कर सकते हो, ठीक है? तो ग्रुप डिस्कशन इज लाइक अ वेरी डर्टी प्लेस, जहां पे आप जो बोलोगे चलेगा, ठीक है? इट हैज टू बी विद कन्विक्शन, इट हैज टू बी, आपने कभी देखे हैं लाइक when a good politician, ठीक है, someone who's very good at what he does, ठीक है, I'm not taking names here, but when a person like that speaks, तो चाहे वो जो भी बोल रहा हो, लोग सुनते हैं उसकी बात. From the youngest of the population to the oldest ones, they listen to what he's saying, and the reason for that is that man knows how to speak, ठीक है? He might not be very educated, he might not be the best at what he does, but he knows how to capture an audience, and that is because he knows how to connect with the audience and speak to them. So even if you oppose him now, you will still listen to him, because that is what conviction means, that is what confidence means. तो आपको वैसे ही उसको निकाल के लेके आना. So that's the first thing. Second important thing is your body language, ठीक है? देखो GDs में क्या होता है ना, यूजुअली इट विल बी अ सीटेड फॉर्मेट, सो एवरीवन इज सिटिंग, यू विल बी इन अ सर्कुलर फॉर्मेट. अगेन ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बताऊंगा. पहले ऑफलाइन में इफ यू आर डूइंग इट, तो यू विल बी इन अ सर्कुलर फॉर्मेट. मेक श्योर व्हेन यू गो यू हैव द मोस्ट प्रॉपर, द परफेक्ट, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रेस कोड, ठीक है? बिकॉज इफ यू आर अप्लाइंग फॉर कॉलेज, let's say any top tier college, it may be Christ, Xavier's, कोई भी college, if they're asking you, calling you for a group discussion, जब आप घुसोगे ना रूम में, मॉडरेटर सबसे पहले आपका कपड़े देखेगा, ठीक है, कि आपने किस टाइप से ड्रेस किया है, आप इस चीज को सीरियसली ले रहे हो या नहीं, ठीक है? लेट्स सपोज देयर इज अ गाय हु वॉक्स इन, ठीक है, एट द वेरी लास्ट मोमेंट, ही इज बेयरली रेडी, टाई नीचे हुआ है, ठीक है, ही इज समहाउ जस्ट फिक्सिंग इट अप, जैसे लग रहा है अभी नींद से उठ के आया. A person like that, and compare that to some other person who came on time, properly dressed, aake bought a little file with him, like something to prepare or something to speak about, kuch bhi ho. So that sets a very good impression. तो पहला हो गया body language when you're walking in. When you come and sit down, ठीक है, make sure your hands are not crossed, ठीक है? बहुत अलग अलग चीजें मीन करती है. when you are sitting with crossed hands, it means that you know more than everyone else in the room, and it might not always be true, and others मतलब ऐसे ही perceive करते हैं इसे. you think of yourself as very high a person, ठीक है? तो keep your hands down on your thighs, ठीक है? or you can close your hands and keep it down, and when you're talking you can use your hands to convey whatever you're saying, ठीक है? वो चलता है. अच्छा,
That is about body language. Acha, another thing that you need to keep in mind in a GD na, there will be a few people like that जो ना मतलब आपको instigate करने में बहुत expert होंगे, ठीक है? And just for your clarification, ऐसा भी होता है, बहुत से GDs में ऐसा भी होता है कि actually there are two moderators, जिनमें से एक के बारे में आपको पता भी नहीं होगा. That moderator will be sitting with you in the GD, ठीक है? तो वो भी डिस्कशन का पार्ट होते हैं. So you might not know कि that person is not a participant, but he himself is a moderator also. But he'll be taking part in the discussion like a participant. इनका काम क्या होता है? These people try and instigate a lot of things to try and bring out the other side. आप जो ये अपना side दिखा रहे हो, ये तो आप अपना presentable side दिखा रहे हो. They will try everything in their power to bring out your other side. ठीक है? तो इसीलिए you'll have to keep your calm because आप कुछ भी point across रखोगे अपना, that person may try to oppose you. That person may try to completely falsify whatever you're saying. You need to keep your calm and stay your ground. ठीक है? तो वहां पे भी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है. जो लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं उठ के चेयर वेयर फेंकने लग जाएंगे, कुछ भी फेंक फाक के बात करने लग जाएंगे, या फिर लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, उनका मदर टंग निकल के आ जाएगा. ठीक है? थोड़ा सा अपने आप को कंपोजर में रखना, बिकॉज जीडी में ऐसा होने का बहुत चांसेस रहता है. जीडी में यू डोंट हैव अ प्रॉपर फॉर्मेट कि अभी मैं बोलूंगा फिर ये बोलेगा फिर वो बोलेगा, ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं होता है. जीडी में एनीवन कैन स्टार्ट, एनीवन कैन फिनिश. ठीक है? ये सब कुछ डिपेंड करता है कि कैसे हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस डिस्कशन में. ठीक है? सो दिस इज व्हाट अ जीडी डज टू यू. सो बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड थिंग, बी विराट कोहली. यहां पे आपको काम इतना सा करना है, यू डोंट नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन. ठीक है? टेक चार्ज योरसेल्फ. जब एक जीडी का टॉपिक निकल के आता है ना, जब भी टॉपिक दिया गया है, every single person is as scared as you are. ठीक है? Every single person is as skeptical about speaking as you are. Don't think कि आप ही को nervousness feel हो रहा है, आप ही को डर लग रहा है. Try doing this. Try starting the conversation. जो भी person GD start करता है ना, they get a lot of points. ठीक है? Because starting a conversation is never easy. ठीक है? And if you cannot start, then be like MS Dhoni. Try to finish the conversation. एंड भी जब आप कर रहे हो ना, इट इज अ वेरी गुड वे टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट. ये आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से दिखाता है, बिकॉज द पर्सन स्टार्टिंग अ कॉन्वर्सेशन और एंडिंग अ कॉन्वर्सेशन हैज टू बी वेरी स्किल्ड. देखो, कोई भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना या एंड करना इज नॉट एज सिंपल एज इट साउंड्स. यू हैव टू प्रैक्टिस इट पहले खुद से भी. ठीक है? तो when you start a conversation, what points can you cover? You can cover the the basic definition of the topic, what the topic means to you. आप उस टॉपिक को किस तरह से पोर्ट्रे करते हो. आई हैव सीन टॉपिक्स व्हिच आर एज वेग एज स्काई इज द लिमिट. दैट इज योर टॉपिक. यू हैव टू टॉक ऑन दैट. दैट्स अ ग्रुप डिस्कशन फॉर 5 minutes. तो इन सब टॉपिक्स में क्या होता है, यू डोंट नो व्हाट द मॉडरेटर वांट्स यू टू टॉक अबाउट. द मॉडरेटर हिमसेल्फ डज नॉट नो व्हाट ही वांट्स यू टू टॉक अबाउट. ठीक है? तो जिस तरफ आप लेके जाओगे कॉन्वर्सेशन को, पूरा कॉन्वर्सेशन हो सकता है उसी तरफ जाए. एंड इफ दैट हैपेंस, इफ यू कैन मूव द कॉन्वर्सेशन टुवर्ड्स द वे यू वांटेड, बहुत पॉइंट्स मिलते हैं. फॉर एग्जांपल, व्हेन आई से स्काई इज द लिमिट, अगर मैं उसे कॉन्वर्सेशन को मैंने स्टार्ट किया एंड इफ आई स्टार्ट इट एंड आई पुट इट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ लेट्स से पॉलिटिक्स. ठीक है? व्हेन आई टॉक अबाउट स्काई इज द लिमिट, मैंने उस टॉपिक को लेके चला गया मैं करप्शन की तरफ, एंड आई टुक इट टुवर्ड्स पॉलिटिक्स. एंड अगर मैं उसी डायरेक्शन में लेके चला गया, एंड अदर पीपल जो लोग ज्वाइन इन कर रहे हैं, दे डू नॉट ट्राई टू चेंज द टॉपिक, दे ट्राई एंड ज्वाइन इनटू दैट टॉपिक ओनली. दैट मींस ये आपके लिए जीत थी, आपके लिए विन है ये, बिकॉज आपने उन सबको अपनी तरफ खींच लिया. And they will only talk about what you were talking about. ठीक है? So that is a very important thing. So this is about either starting the conversation or ending the conversation. Again, एक चीज और याद रखना है, ये मत सोचना कि इन अ जीडी जितना ज्यादा बोलोगे उतना मार्क्स मिलेगा. नॉट इंपॉर्टेंट. ठीक है? मॉडरेटर्स डू नॉट लाइक पीपल हु ट्राई टू कंप्लीटली ओवरटेक द कॉन्वर्सेशन. भाई ठीक है, 10 मिनट का कॉन्वर्सेशन है, वी नो यू नो अबाउट द टॉपिक, बट यू डोंट नीड टू डोमिनेट द टॉपिक. You need to only put across your points in a very effective manner. या तो स्टार्ट में डाल लो या तो एंड में डाल लो, जैसे भी आपकी मर्जी. या फिर अगर आपको लगता है कि जीडी में जो आपके आसपास में जो कॉम्पिटिटर्स है आपके साथ, आपके पार्टिसिपेंट्स, दे आर वेरी वीक, बहुत डल है, बहुत वीक है, आप ही स्टार्ट करो, आप ही एंड करना, और बीच में एक जगह और आप बोलना. ठीक है? एंड इसके साथ साथ एक ब्राउनी टिप और देता हूं मैं. इफ यू आर सीइंग दैट सम पार्टिसिपेंट्स आर वेरी वीक, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर सेक्शन यहाँ बैठे हैं, सपोज 2-3 लोग यहाँ बैठे हैं, दे आर नॉट स्पीकिंग एट ऑल. ठीक है? आई टेल यू समथिंग व्हिच विल ब्रिंग आउट 2 एस्पेक्ट्स ऑफ योर कैरेक्टरिस्टिक्स. पहला ये, व्हेन द कन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन, टेक ओवर.
मैंने जैसे बोला ना, बीच में कहीं से आप एक कॉन्वर्सेशन का पॉइंट उठा के खुद बोलना स्टार्ट करना, एक लाइन बोलो, सिर्फ एक या दो लाइन, ओनली पुट अक्रॉस वन स्मॉल पॉइंट, ठीक है। पॉइंट रखते ही डोंट एंड योर स्पीच, खत्म मत करो, ऐसे बोलते चलो दैट यू आर अबाउट टू से समथिंग मोर, एंड उस समय में यू से दैट आई हैव बीन ऑब्जर्विंग that this side of our group has been extremely quiet, we are not giving them an equal chance to speak, ठीक है, so let's hear from them as well. ये बोलने से ना you have two benefits. पहला, आप सबको बोलने का अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हो, और दूसरा, if they are actually weak and they cannot speak, तो ये आपके लिए ब्राउनी पॉइंट है, आपने उन्हें एक तो रिप्रेजेंटेशन भी देने की कोशिश की, और प्लस मॉडरेटर को ये भी दिखा दे कि ये लोग वर्दी नहीं है, इनको मत इंक्लूड करना आप अगले राउंड में, ठीक है, और ये आपने दिखाया उनको, ठीक है। तो दिस शोज आउट टू एस्पेक्ट्स ऑफ योर ओन पर्सनालिटी कि यू आर ट्राइंग टू बी इक्वल, जस्ट मोर रिप्रेजेंटेटिव, बट ऑन द अदर हैंड डुअल बेनिफिट आपका पूरा हो गया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, हियरिंग इज नॉट लिसनिंग। देखो जीडी में ना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग, इट्स जस्ट नॉट अबाउट बॉडी लैंग्वेज। जब आप जीडी में बैठते हो ना, one very important thing is listening to those 7-8 people who are speaking and taking down points if you can, or if remembering them in your mind, because जब आप टॉपिक स्टार्ट कर चुके हो ना, बहुत सारे इनपुट्स आएंगे बहुत सारे लोगों से, and some of them might contradict you, some of them might say something which is not, you know, go in line with what you said. Keep those points in mind, and even जो लोग आपको सपोर्ट किए थे, keep those points in mind as well, ठीक है, because लास्ट में जाके जब आप समराइज करोगे ना, you can talk about it in this manner कि as participant number 1, 3 and 5 said that they also agree with what I have said. So it brings out the truth and the factualness of what I had completed. Coming on to speakers number 2, 7 and 8 who feel that so and so points were not completely up to the mark, I'd like to say, and then उसके बाद रिबट करो अपना पॉइंट को, उनके पॉइंट्स को, कि वो लोग गलत क्यों है, ठीक है। ये करने से क्या होगा, ये मॉडरेटर को ये भी दिखाता है कि यू वर नॉट जस्ट स्पीकिंग एंड देन यू नो रिलैक्सिंग कि मेरा काम हो गया, यू वर लिसनिंग टू एवरी सिंगल वन ऑफ देम, ठीक है। बिकॉज इफ यू आर रिबटिंग देयर पॉइंट, यू कैन ओनली रिबट देम व्हेन यू हैड हर्ड देम, ठीक है। एक और टिप, यू डोंट नीड टू हियर देयर एंटायर स्पीचेस। बहुत अगर बोरिंग लग रहा है ना, उनमें से कीवर्ड्स पकड़ लो जो लोग वो बोल रहे थे, इवन दैट इज इनफ। जब आप वो कीवर्ड्स पकड़ के वापस रिपीट कर लोगे ना, तो ऐसे लगेगा मॉडरेटर कि आपने फिर भी सुना था उनके बातों को, तभी आप कीवर्ड्स उठा पाए ना, वरना हाउ डिड यू पिक आउट द कीवर्ड्स यू नो फ्रॉम व्हाट दे वर स्पीकिंग। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है आपके लिए। अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन टू माय लास्ट पॉइंट, एक चीज और याद रखना, इन द एंड या फिर बीच में जब भी आप किसी स्पीकर ने आपको कॉन्ट्राडिक्ट किया बाय चांस, ठीक है, और आप उसे रिबट करना चाहते हो, और या फिर आप खुद से स्टार्ट करना चाहते हो, ये कॉन्ट्राडिक्शन वाला काम आप खुद से स्टार्ट करना चाहते हो, यू शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट द पर्सन डायरेक्टली। यहां आता है प्रॉपर पॉलिटिक्स। सपोज करो किसी ने आपको बोला लेट्स से कि ये टॉपिक में सो एंड सो थिंग्स हैपन, ऐसा होता है, ठीक है, यू नो ऐसा नहीं होता, तो व्हाट यू विल से इज, हो सकता है व्हाट दिस पर्सन माइट बी सेइंग इज ट्रू, बट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस in so and so cases I have observed that in 99% of the situations ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो what you are saying is I'm not telling that you are wrong, 1% केसेस में हो सकता है तुम करेक्ट हो, बट 99% केसेस में ऐसा होता है। तो in this manner you are not saying an absolute no to that person, तो उसका पॉइंट भी अपहोल्ड कर दिया आपने, लेकिन आपने अपना पॉइंट पुट अक्रॉस कर दिया कि मेरा पॉइंट सही, ज्यादा सही क्यों है, ठीक है। इन दिस वे अगेन यू आर नॉट स्पार्किंग अनदर रिबटल, वरना क्या होता है, अगर डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्ट करोगे ना, दैट पर्सन विल बी कंपेल्ड टू स्पीक अगेन एंड रिबट अगेन टू योर पॉइंट, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह से करोगे ना, ही विल बी लाइक चलो ठीक है, जो बोला समझ में आता मुझे, मैं समझ गया, ठीक है। तो ये चीज ना, दिस थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम वाचिंग अ लिटिल बिट ऑफ द टीवी शोज वेयर अ पर्सन सेज व्हाटएवर यू से बिफोर द वर्ड बट इज कंप्लीटली बुलशिट, ठीक है। बट ये जो चीज होता है ना, इट हेल्प्स यू टू यू नो मेक द अदर पर्सन बिलीव कि उसने भी जो बोला वो मैं मानता हूं। तो व्हाट यू कैन डू इज, पहले अप्रिशिएट कर दो जो उसने पॉइंट पुट अक्रॉस किया, दैट आई थैंक स्पीकर नंबर 3 फॉर adding to this conversation by putting across his points, but what he has said is only true in 1% of the cases. तो ऐसे क्या होगा, स्टार्टिंग में आपने उसे थोड़ा सा सपोर्ट दे दिया ना, तो he will be a little I'm sorry for the extra noise, he will be a little in anticipation कि मैं इसे अपोज करूं नहीं करूं, तो ठीक है, तो that person may not oppose you in the end. So this is a good chance that you can take, okay. तो अगर if you guys are feeling that the volume is too much which is coming from the outside, please let me know, okay. I'll just do one thing, one sec, yeah, okay. So now coming to my last point,
which is KISS. So keep it short and simple. In a GD, no one wants to hear long, 2 घंटे 1 घंटे के speeches. You want to keep it to 60, 90 or 120 seconds. Usually इतना टाइम नहीं मिलेगा बोलने के लिए, तो 45 to 60 seconds ही ज्यादा से ज्यादा आपको बोलने के लिए मिल सकता है. उसके बाद बाकी लोग ना बहुत उत्सुक हो जाएंगे बोलने के लिए, बिकॉज उन्हें ऐसा लगेगा अब हम भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो कीप इट बिटवीन 45 to 60 seconds. एंड ये घर पे प्रिपेयर करना है. यू हैव टू प्रिपेयर कि आप कैसे 45 to 60 seconds इम्प्रॉम्प्टू कोई भी टॉपिक पे बोल सकते हो, एंड अच्छे स्पीचेस. ठीक है, हाउ डू यू प्रैक्टिस दिस? बहुत सारे ऑनलाइन आपको वेबसाइट या कुछ भी मिलेंगे जहां पे रैंडम टॉपिक्स जनरेट होते हैं. तो रैंडम टॉपिक जनरेटर टाइप के, तो जनरेट अ रैंडम टॉपिक, सिट इन फ्रंट ऑफ द लैपटॉप, जो भी टॉपिक निकल के आया नॉन स्टॉप 45 seconds to 1 minute बोलना है. ठीक है, एंड अच्छा कंटेंट बोलना है. जैसे ही हो गया डोंट स्टॉप, वापस टॉपिक चेंज करो, कोई नया टॉपिक आएगा उस बारे में बोलो. ठीक है, इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस होगा कि ये सब चीजों पे इम्प्रॉम्प्टू कैसे बोलते हैं. एंड दोस टॉपिक्स डोंट नीड टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. सिंपल टॉपिक्स चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. सिंपल टॉपिक्स लाइक स्काई इज द लिमिट, या फिर व्हाई इलेक्ट्रॉनिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड. इस टाइप के छोटे छोटे सिंपल टॉपिक्स, उन पे प्रैक्टिस करो. इट हेल्प्स अ लॉट. ठीक है, अच्छा. एंड व्हेन आई से टू कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, इट ऑल्सो मीन्स कि जैसे अगर आपने बीच में कहीं पे इंटरप्ट किया किसी को, सपोज करो कोई स्पीकर बोल रहा था एंड यू हैव टू इंटरप्ट हिम, तो डोंट ट्राई टू स्पीक ऑन टॉप ऑफ हिम. जोर से बहुत बोलने की कोशिश मत करो. अगर ऐसा करोगे, यूजुअली मॉडरेटर इज नॉट इम्प्रेस्ड. ठीक है, ठीक है, आप चिल्ला सकते हो, वो स्किल नहीं देख रहे हैं हम. ठीक है, तो क्या होता है, व्हाट यू कैन डू इज, सपोज अ पर्सन इज स्पीकिंग, वो कोई पॉइंट पुट अक्रॉस कर रहा है, व्हाट यू कैन डू इज straight away, जब सपोज करो he is going on and on about something, ठीक है, you bring out one hook. ठीक है, कुछ ऐसा सेंटेंस जिससे सबका अटेंशन आपकी तरफ आ जाएगा. देखो जीडी में ना गेम पूरा अटेंशन का है. अगर आप अटेंशन ले सकते हो ना मेजॉरिटी क्राउड का, जो भी बोल रहा होगा ना उसकी बात कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा. ठीक है, तो सपोज करो 8-10 लोग बैठे थे, उनमें से आपने यू स्पीक वन लाइन विच इज रेलेवेंट टू योर कॉज, वेरी रेलेवेंट, एंड यू पुट अक्रॉस दैट लाइन. ठीक है, सपोज आपने मार्वल का कोई डायलॉग बोल दिया, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड एज इट शुड बी. ठीक है, हो सकता है दैट कैप्चर्स द अटेंशन ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑडियंस, एंड जो वो बोल रहा है ना, कब से सपोज फैक्ट्स के बारे में ब्लैबर किए जा रहा था, वहां से अटेंशन चला जाए. तो यू कैन ब्रिंग आउट कोट्स, यू कैन ब्रिंग आउट स्टैटिस्टिक्स, यू कैन ब्रिंग आउट एनी सॉर्ट ऑफ थिंग दैट कैन बी अ हुक. ठीक है, जो सारे कॉन्वर्सेशन को आपकी तरफ, सारे अटेंशन को आपकी तरफ लेके आएगा. तो यूज समथिंग लाइक दैट टू ब्रिंग द कॉन्वर्सेशन टू यू. ठीक है, डोंट ट्राई टू शाउट आउट योर वे, bring the conversation and the attention to you with a hook. ठीक है, so these are the main things that you need to keep in mind in a GD. अच्छा, I've missed out a few things जो मैं अभी आपको एक साथ बता रहा हूँ. डिप्लोमेटिक कॉन्ट्रडिक्शंस मैंने आपको बोला, वीक स्पीकर्स को कैसे टच कर सकते हो मैंने बोला. स्पीक लाउडली. ठीक है, डोंट शाउट बट बी लाउड एंड क्लियर कि सबको सुनाई दे आपकी आवाज. ठीक है, अच्छा, ऑनलाइन अगर हो, एंश्योर अ गुड नेटवर्क कनेक्शन, एंश्योर अ गुड माइक. पहले से टेस्ट कर लो, चाहे किसी को भी ज्वाइन करवा के सेम प्लेटफॉर्म में या कैसे भी, कि आपकी आवाज अच्छे से आ रही है. एंड ओनली देन स्टार्ट स्पीकिंग, वरना यू लुक लाइक अ फूल कि आधा बात सुनाई दे रहा है, आधा बात नहीं सुनाई दे रहा. सो मेक श्योर यू हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्शन एंड मेक श्योर यू हैव अ गुड माइक व्हेन यू आर स्पीकिंग. अच्छा, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट सिंपल. जब भी कोई टॉपिक मिलता है ना, तो टॉपिक विल आल्सो बी वेरी सिंपल. ठीक है, तो इफ यू आर द पर्सन हु इज इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक, स्टार्ट ऑन अ सिंपलर नोट, एंड उसके बाद धीरे धीरे उसकी एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग को थोड़ा सा और कंस्ट्रक्ट करते जाओ, अपने तरफ लेते जाओ. वो धीरे धीरे करना, बिल्ड इट अप. डोंट स्टार्ट ऑटोमेटिकली, बिकॉज बाकी लोग फिर सोचने लगेंगे ये यहाँ से यहाँ कैसे पहुंच गया. तो बिल्ड इट अप फॉर देम इन 60 seconds. ठीक है, अच्छा, इफ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन, सपोज जीडी का टॉपिक 2-4 मिनट पहले दे दिया था आपको, और आपको टाइम दे दिया इंटरनेट से थोड़ा देखने के लिए, करने के लिए, डू नॉट कीप ऑल दोस थिंग्स एक साथ अपने सामने लेके बैठे और देख देख के बोल रहे हो. बिल्कुल नहीं. दिस इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इन जीडी. बिल्कुल देख के नहीं बोलना. ठीक है, अच्छा, यू कैन ग्लांस ओवर योर पॉइंट्स कि एक बार थोड़ा सा देख लिया एंड देन यू कंटिन्यू स्पीकिंग, वो चलता है. ठीक है, बट डोंट लाइक स्टेयर करते रहो और फिर बात करते रहो. नो वन विल पे अटेंशन. आई कॉन्टैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप 8-10 लोगों से बात कर रहे हो ना, प्रैक्टिस दिस. जब आप रूम में भी हो ना, अगर आपको प्रैक्टिस करना है कि आई कॉन्टैक्ट कैसे मेंटेन करना चाहिए, if you're sitting in a room in front of laptop, मैंने जैसे आपको बोला टॉपिक चूज करो और 1 मिनट प्रैक्टिस करो. व्हाट यू कैन डू इज, रूम में 3-4 पॉइंट एलोकेट कर लो. ठीक है, व्हाट यू नीड टू डू इज, अपने सामने वो 3-4 पॉइंट्स पे आपको यूनिफॉर्मली अपने आप को घुमाना है. ठीक है, तो पहले इधर देख के बात कर रहा हूं मैं, फिर इधर देख के कर रहा हूं, फिर देन आई लुक दिस साइड एंड देन आई लुक ओवर दैट साइड. ठीक है, तो ऐसे क्या, एंड देन यू कीप गोइंग राउंड एंड राउंड, यू कीप गोइंग. इससे क्या होगा, द ऑडियंस व्हिच इज देयर इन द जीडी, दे विल keep their attention to you. If you give them your attention, they'll give you your attention.
देयर अटेंशन, ठीक है। ये तभी होता है क्लासरूम में भी आप देखोगे जो टीचर्स ना आपकी तरफ देख रहे हैं ना बार बार, या फिर उन लोग पूरे क्लास को धीरे धीरे पूरे क्लास को देखते रहते हैं, तभी आप उनको अटेंशन देते हो यूजुअली, वरना आप नहीं देते हो, ठीक है। तो इट्स अ वेरी सटल थिंग बट इट वर्क्स वेरी वेल, ठीक है। अच्छा, हैंड जेस्चर्स डेफिनेटली यूज करो व्हेन यू आर टॉकिंग, बिकॉज अटेंशन आप पे बनाया रखा जाएगा उससे। एंड वन मोर थिंग इज कनेक्ट विद इमोशंस, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरली अबाउट फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड कोट्स। इफ यू ब्रिंग आउट अ लिटिल बिट ऑफ इमोशंस ना, कि उस टॉपिक को आप थोड़ा सा मतलब इमोशनल टच दे दो, सपोज टॉपिक वैसा है यहाँ पे इमोशनल एस्पेक्ट ला सकते हैं, तो ब्रिंग आउट अ लिटिल बिट ऑफ द इमोशंस आल्सो, ठीक है, दैट हेल्प्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सपोज द टॉपिक इज इन फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको टॉपिक दिया गया है, जैसे कि कोई प्रॉब्लम ही स्टेट कर दिया डायरेक्टली कि पोल्यूशन इन आवर कंट्री है, वैसा कुछ है, तो डोंट टॉक अबाउट कि हाँ पोल्यूशन बहुत है, बहुत खराब हालत है, वी नो दैट, पता है सबको। टॉक अबाउट सॉल्यूशंस, अगर आपके पास कहीं से इनोवेटिव सॉल्यूशंस है, ठीक है, तो कीप दो सॉल्यूशंस बचा के रखो, एंड तक मत बचाओ। मतलब इफ यू स्टार्टिंग में सॉल्यूशन मत बोल दो, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में यू जस्ट इंट्रोड्यूस द टॉपिक, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट एंड उसको बिल्ड कर दो थोड़ा सा, फिर बीच में वापस से टेक अ चांस एंड देन ब्रिंग आउट द सॉल्यूशंस दैट यू हैव। व्हेन यू पुट फॉरवर्ड सॉल्यूशंस ना, मॉडरेटर को ऐसा फील होता है कि आप बहुत प्रोडक्टिव तरीके से बात कर रहे हो, ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, सो दैट्स ऑल आई हैड अबाउट जीडी। क्वेश्चंस अगर कुछ भी है, कीप इट नोटेड, एट द एंड हम लोगों के पास टाइम होगा, एट द एंड विल टॉक अबाउट द क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज माइक्रो प्रेजेंटेशन, एंड द बेस्ट वे टू डिफाइन अ माइक्रो प्रेजेंटेशन इज द आर्ट ऑफ सेलिंग योरसेल्फ, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे लिटरली वही हो रहा होता है। इन अ माइक्रो प्रेजेंटेशन, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड इज दैट द टॉपिक इज यू। हो सकता है आपको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कोई भी टॉपिक दिया जाए, यूजुअली क्या होता है, क्राइस्ट में आई हैव सीन प्रेजेंटेशंस आर यूजुअली रेडी, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। 2 या 3 स्लाइड की, 2 3 4 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन दे ऑलरेडी हैव ऑन सम वेग सिंपल टॉपिक्स। योर वर्क इज टू एक्सप्लेन दैट टॉपिक टू देम, ठीक है। नाउ यू थिंक अबाउट इट इन अ वेरी रैशनल मैनर। आप लोग क्लास 12 के बच्चे हैं, 11 12 के बच्चे हैं, आपको अगर मैं टॉपिक दू, लेट्स से समथिंग व्हिच इज वेरी रेलेवेंट टू योर करिकुलम, ठीक है, यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्क्स जितना आपने अचीव किया वो उनके पास है, उनको पता आप किस टाइप के स्टूडेंट हो अकेडमिकली, उनको नहीं फर्क पड़ता आप कैसा टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हो उनके सामने। दे वांट टू सी कि आप जब टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है, व्हाट हाउ आर यू एक्सप्लेनिंग इट, आपका खुद का प्रेजेंटेशन कैसा है। इट्स नॉट अबाउट पावर पॉइंट, इट्स अबाउट प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो आपका खुद का प्रेजेंटेशन कैसा है, ठीक है, किस कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलते हो, आपका आई कॉन्टैक्ट, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस, एंड दीज आर द थिंग्स दैट दे आर लुकिंग फॉर। दे आर नॉट लुकिंग फॉर कि प्रेजेंटेशन के बारे में नॉलेज कितना आपको, उससे फर्क नहीं पड़ रहा उनको, ठीक है। ये चीज एकदम अच्छे से याद रखना आप लोग। अच्छा, आफ्टर दैट सपोज आपको कोई प्रेजेंटेशन का टॉपिक दे दिया एंड नाउ यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग ऑन इट। हो सकता है कि आपको प्रेजेंटेशन कट शॉर्ट कर दे वो लोग, जैसे कि लेट्स से द प्रेजेंटेशन इज फॉर 6, यू थिंक द प्रेजेंटेशन विल गो ऑन फॉर 6 मिनट्स, बट हो सकता है 3 मिनट के अंदर अंदर ही आपका प्रेजेंटेशन काट दे उन लोग बीच में कि हो जाएगा और करने की जरूरत नहीं है। इट कैन बी फॉर वन ऑफ 2 रीजंस। पहला, या तो आप अच्छा कर रहे थे एंड दे अंडरस्टूड दैट यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन हु कैन स्पीक एंड हु कैन टॉक वेल, या तो दूसरा, इतना वाहियात कर रहे थे आप कि उनको समझ में आ गया आप यहाँ के लायक नहीं हो, निकलो यहाँ से, ठीक है। तो दे विल डू दिस, ये बहुत इजीली कर सकते हैं। अच्छा गाइस, द मीटिंग माइट एंड, ठीक है, तो ज्वाइन बैक क्विकली एज सून एज इट एंड्स, ओके। अच्छा, तो फर्स्ट थिंग तो ये था कि टॉपिक आप हो, ठीक है। सेकंड थिंग इज अगेन यू हैव टू कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। व्हेन यू आर डूइंग द प्रेजेंटेशन ना, इतना ज्यादा हाबड़ जाबड़ इंफॉर्मेशन उनको नहीं चाहिए। ट्राई टू कीप द प्रेजेंटेशन, सपोज अगर 4 स्लाइड्स है, ठीक है, 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो 6 मिनट्स, उससे ज्यादा आपका नहीं जाना चाहिए माइक्रो प्रेजेंटेशन, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ माइक्रो प्रेजेंटेशन, छोटा सा, ठीक है। तो अगर 4 स्लाइड है उस प्रेजेंटेशन में आपको जो दिए गए हैं, तो 3 से 5 मिनट, 5.5 मिनट से ज्यादा मत जाना, उतना टाइम बहुत है। एक स्लाइड पे 1 मिनट चलाओ, उससे ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। एंड फैक्ट्स अगर आपके पास है, इफ यू कैन पुट अक्रॉस, रखो, नहीं है, टॉक सिंपली अबाउट द टॉपिक, कीप इट वेरी सिंपल। लेकिन जो भी एक एक सेंटेंस जो आप बोलोगे ना, मेक श्योर इट्स वेरी क्रिस्प, क्लियर एंड एकदम पुट अक्रॉस कर रहा है आपका, मतलब अंदर से आपका जो है ना कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है, मैं डरता नहीं हूं अभी इस टॉपिक से, वो निकल के आना चाहिए, ठीक है। दैट इज ऑल दे आर लुकिंग फॉर, और कुछ नहीं है।
सुनने में बहुत बड़ा सा लगता है, माइक्रो प्रेजेंटेशन पता नहीं क्या करवाएंगे, बहुत ही सिंपल सी चीज है। सपोज करो प्रेजेंटेशन की एंड में या बीच में इन्होंने एक क्वेश्चन डाल दिया, आपको कुछ भी पूछ लिया टॉपिक से रिलेटेड, बिकॉज अगर आप कॉमर्स वाले कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर बीट इकोनॉमिक्स मैथ्स एनीथिंग, देयर माइट बी अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द इंडस्ट्री इन जनरल, जो अभी बिजनेस की इंडस्ट्री है या फिर इकोनॉमी जो है कंट्री का। अगर आपने उतना पढ़ के आए हो, आपको उतना पता है उस बारे में जो भी उन लोग पूछ रहे हैं, देन यू आंसर। इफ यू डू नॉट नो और इफ यू आर नॉट श्योर, ठीक है, मेक श्योर यू टेल इट टू देम। ठीक है, बता दो कि सर और मैम, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन, इज इट फाइन इफ आई टेक अ गेस? से दैट एंड देन यू टेक अ गेस। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है, अभी भी प्रेजेंटेशन के अंदर कॉन्फिडेंस एकदम फूट फूट के भरा हुआ है, क्वेश्चन पूछ लिया कि अभी कंट्री का रेपो रेट कितना है, ठीक है, और आपने एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब अंदर क्वेश्चन मार्क है, कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया 12%, एंड उसके बाद वो लोग आपको ये नहीं बोलेंगे कि आपने सही बोला या गलत बोला, उन लोग बस बोलेंगे ओके, और फिर अगले क्वेश्चन में मूव ऑन हो जाएगा, बट दे नो दैट यू आर ट्राइंग टू ब्लफ देम। उनको ब्लफ करके फायदा नहीं, दे नो द आंसर। ठीक है, तो इसीलिए व्हाट हैपेंस इज, टेल देम कि सर आई एम नॉट वेरी श्योर, कैन आई टेक अ गेस, एंड उसके बाद पूछो। एंड अगर आप गेस कर रहे हो ना, सिर्फ मत बोलो 12%, अपना रीजनिंग दो कि आपका गेस 12% क्यों है। अगर उतना भी आपको नहीं पता ना कि आपका किस रीजन से 12% आप बोल रहे हो, तो मत बोलो, बोलो सर आई एम नॉट श्योर, बस हो गया, इट्स फाइन। सर आई एम सॉरी बट आई डू नॉट नो दिस, इट्स फाइन। दे आर हैप्पी गेटिंग अ नो और गेटिंग एन आई एम सॉरी आई डोंट नो द आंसर, दे आर हैप्पी विद दैट मोर देन गेटिंग अ रॉन्ग आंसर, बिकॉज उन्हें पता है कि आप झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू पास इट ऑफ एज ट्रू, दे नो दैट। ठीक है, अगेन जीके हेल्प्स, इफ यू नो, इफ यू हैव द जनरल नॉलेज, थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाना। सपोज करो आप बीबीए एफएनडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो कंट्री का जो फिनेंस का कंडीशन है, अभी अभी जैसे बजट आने वाला है February 1 को, ठीक है, तो की बेसिक नॉलेज की उस बजट में क्या क्या इंट्रोड्यूस हुआ, किसके लिए क्या था, किसके लिए क्या नहीं था, हैव दैट बेसिक नॉलेज। बहुत यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं, वो अभी एन न्यू वाले, फिर क्विंट, you'll get a lot of videos, वहां से ले लो इन्फॉर्मेशन, इट्स मोर देन एनफ। ठीक है, लास्ट थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने बार बार बोला, कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जितना कॉन्फिडेंटली दोगे उतना अच्छा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट माइक्रो प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज पर्सनल इंटरव्यू। अब देखो, दिस जो मैं यहाँ पे सेंटेंस मैंने लिखा है ना, दिस इज वेरी ट्रू, यू गेट सिलेक्टेड और रिजेक्टेड इन द फर्स्ट 2 minutes। प्रेजेंटेशन जब आप पर्सनल इंटरव्यू जब आप देने जाते हो ना, यूजुअली योर पर्सनल इंटरव्यू सेट टू लास्ट 10 minutes, 7 to 10 minutes, बट बहुत से इंटरव्यूज ऐसे होते हैं 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, not necessarily ending in a rejection, but also ending in an acceptance wala thing. It ends in 5 minutes. And I'll tell you one thing about myself. I have attended three personal interviews during my admission process because I only applied for Christ, jahan pe main interview tak gaya tha. The first interview I got rejected. There was a reason behind that. I'll explain that. And for the next 2 interviews, I aced them, and both of my interview ka duration was just 4 minutes. 4 मिनट से ज्यादा इंटरव्यू चला ही नहीं मेरा। ठीक है, बिकॉज आई न्यू what kind of things they're looking for now, I knew that। ठीक है, so from failures you get to the right path। तो let's talk about personal interview now। तो देखो, ज्यादा इंस्टाग्राम रील्स देख के आए होगे तो फर्स्ट सेंटेंस सुन के बहुत ही गाना आएगा दिमाग में, मत सोचना इतना ज्यादा। ठीक है, तो सी, इन अ पर्सनल इंटरव्यू ना, द फर्स्ट थिंग दैट द इंटरव्यूअर विल नोटिस as soon as you walk into the room will be how you are dressed, how you are walking, how are you carrying yourself, and by the time you reach the seat, they would have made a judgment about you। बहुत जजी लोग होते हैं ये लोग, देख के आपको पहले जज करेंगे बहुत बढ़िया से। तो रेडी हो जाओ that you will get judged, so prepare like that, be very well dressed, एकदम well mannered, अच्छे ethics के साथ। ठीक है, I'll tell you what this sentence, what this acronym means। Okay, the first thing, A stands for appearance, B stands for your behavior, C stands for your confidence, D for your discipline, E for your ethics, F for your finesse, and U for your utter respect। ठीक है, तो देखो, आपका appearance, behavior, confidence, discipline, these are something you usually understand, ये मुझे explain करने की जरूरत नहीं है। When I say ethics, when you sit down there ना, हो सकता है they pose some questions which will be what do I call it, not completely, जो आपके पास कोई सीधा आंसर नहीं होगा उसके लिए। ठीक है, some question which is ethically flawed, मतलब दोनों ही आंसर जो उसमें से निकल के आएगा ना, they'll give you a question and they'll give you 2 options, तो दोनों ही आंसर ऐसा होगा जिसका कोई आपको लगेगा कि दोनों ही आंसर करेक्ट नहीं है। सपोज दे आस्क यू दैट अ पर्सन इज हैंगिंग ऑफ अ रोप ऑफ अ क्लिफ, एक तरफ एक इंसान लटक रहा है, ठीक है, एंड दूसरे तरफ देयर आर 10 डॉग्स हैंगिंग ऑन द अदर साइड। ठीक है, तो
which one will you save? You can only save one of them, so which, like one side, which one will you save? So it's a very ethically flawed question. So in cases mein na, you'll have to explain your reasoning. It's not about the answer which you choose, both answers may be correct, but it's about the reason why you've chosen one of them. ठीक है, तो वो आपके character के बारे में बताएगा. So if I had said, for example, I would have saved, let's say, the dogs. Why would I have saved the dogs? You'll have to explain yourself कि मैं उन dogs को क्यों save करूंगा, why not the human being. ठीक है, उसके पीछे reason होना चाहिए. अच्छा, after that is your finesse. जब आप वहां जाके बैठोगे ना, ठीक है, the way you talk, the way you present yourself, ठीक है, the way you do everything in front of them, from the way you pick up a pen, you solve a sum, you talk to them, everything is noticed. ठीक है, तो make sure you're on your best behavior, and when you talk with respect. The last point was utter respect. It is not just about when you talk to them उस समय respect दिखाना. No, from the time you enter the room, ठीक है, and you reach their table, what do usually people do is they wish them good morning or good afternoon and they sit in the chair. Don't do that. बैठने से पहले ना, ask them, sir or ma'am, may I sit? And only then you take a seat. Because बहुत बार क्या होता है ना, and this happened not with me but with my friend. And the first time I went for the interview, my friend came out and told this to me, that he went directly and he sat, and the interviewers made him stand up again. ठीक है, because he went and sat by himself. He was not told to sit down. ठीक है, so this can happen because some interviews are, ये लोग जानबूझ के नहीं कर रहे हैं. They do this to test you कि आपका इन सब चीजों का रिएक्शन कैसा होता है. ठीक है, तो आपको उस चीज में जाना ही नहीं है. पहले से you, when you go there, remember to wish them and then ask them, may I sit, and only then you sit down. ठीक है, apart from